Dear students, in the previous video we have discussed five kingdom system of classification by Robert H. Whittaker. He has proposed this system in the year of 1969. And you know that there were some shortcomings in the previous systems of classification in which the organism were divided into two groups, either into plants or into animal. But this Robert H. Whittaker, he divided the whole organisms into five kingdoms. And these five kingdoms were, Monera, Protista, then fungi, plantae, and animalia. Today we will discuss the characteristics of these five kingdoms. We will select some criteria, we will take some characteristic features, and then on the basis of those characteristic features we will try to distinguish between these kingdoms. Now let us take the first characteristic, that is cell type. Now cell type, we have discussed that cells are of two types. Either cell is prokaryotic or it is eukaryotic. Now what is prokaryotic cell? Prokaryotic cell lacks a nuclear membrane around the genetic material, or you can say the genetic material is lying naked in the cytoplasm. जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिकली क्या होता है, जैसे जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके बाहर से वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होता है, और इस केस में इस जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहा जाता है. जैसे अगर आपने हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा तो इसे केंद्रकाय कहा जाता है. अब अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, हालांकि इसमें सेल ऑर्गेनेलिस राइबोसोम्स के अलावा नहीं होते, लेकिन जो मेन डिफरेंस है दैट इज द एब्सेंस ऑफ दिस nuclear membrane around the genetic material. Now when we talk about this eukaryotic cell, there will be a well defined nuclear membrane around the genetic membrane. Suppose genetic material, that is, suppose this is the genetic material, it will be surrounded by a well defined nuclear membrane, and whenever this membrane is present, it means the cell is eukaryotic. And this eukaryotic cell may be further, it may be plant cell or it may be animal cell, but that is the classification at the later stage. Now the first of all, we have selected one characteristic, that is cell type. Now on the basis of this cell type, how we will distinguish between these five kingdoms. Now we will start from Monera, then Protista, next one is fungi, then plants, plantae, and animalia. Now taking the first characteristic feature, we can easily distinguish these kingdoms. Now in case of kingdom Monera, the cell type is prokaryotic. You know that it is the only kingdom having organisms with prokaryotic cells. Means in all members of Monera, no well defined nucleus or nuclear membrane is present in their cells. This is the only kingdom where prokaryotic cells are observed. All other kingdom except this Monera, they have cell type eukaryotic. And we have also discussed a flow chart for this classification, and in that flow chart we have taken the first point as the cell type, and on the basis of that the organism were divided into two groups, prokaryotic and eukaryotic, and these prokaryotic organisms were placed in a kingdom which is known as Monera, and all other kingdoms have eukaryotic cell type. Now this is the first characteristic feature which distinguishes Monera from other kingdoms.
Now there is another, that is nuclear membrane. This point is correlated with the first point. You know, whenever the cell is prokaryotic, nuclear membrane is not observed. You know that the monerans have a prokaryotic cell type. It means in case of Monera, the cells are prokaryotic, and if the cells are prokaryotic, they lack nuclear membrane, and the genetic material will be naked in the cytoplasm. You know that this is a prokaryotic cell, and this is the genetic material lying naked in the cytoplasm without any nuclear membrane. It means that in case of Monera, no nuclear membrane is found around the genetic material. You can say nuclear membrane is absent. But you know, all the other four kingdoms, that is Protista, fungi, Plantae and Animalia, they have eukaryotic cell type. If they have eukaryotic cell type, it means the nuclear membrane is found around the genetic material. You can say there is a well defined nucleus in all other kingdoms having eukaryotic cell type. तो आप कह सकते हैं कि अगर हम इस मोनेरा के अलावा किसी और किंगडम की बात करें तो वहां पे जो जेनेटिक मटेरियल होगा दैट विल बी सराउंडेड बाय अ well defined nuclear membrane. So this is the difference between Monera and other kingdom. You can say nuclear membrane is absent in case of Monera, but it is present from Protista to Animalia. यहां भी प्रेजेंट होगा और यहां भी प्रेजेंट होगा. तो इस तरह से हमने दो कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की अभी तक, जिनमें से हमने एक सेल टाइप की. और आपको एक चीज बड़ी ध्यान रखनी है कि जो मोनेरा है उसको आप वैसे ही एक अलग किंगडम मान सकते हैं कि पूरे के पूरे जो हमारे पास चार किंगडम है इसको छोड़ करके वो सारे यूकैरियोटिक है. केवल ये ही एक किंगडम ऐसा है जिसमें आपको प्रोकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज सेल वॉल. Now, what is cell wall? You know that in case of cell, you know the plant cell, you know animal cell. As you know that in case of animal cell, only there is a single membrane, that is you can say plasma membrane is present. But in case of plant cell, there is another layer around this plasma membrane and that is called as cell wall. मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करते हैं ये एनिमल सेल है हमारे पास, तो एनिमल सेल में केवल यही लेयर होगी, एक ही कवरिंग होगी और इस बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेकिन अगर हम इसी को यहां ले लें, प्लांट के केस में ले लें, तो प्लांट के केस में क्या होता है कि इस लेयर, जैसे मैंने यहां पर ये ब्लू कलर से दिखाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और लेयर होती है और इसे कहा जाता है सेल वॉल. जैसे ये सेल वॉल यहाँ पे दिखाई गई है. तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ सेल वॉल नहीं है, यहाँ सेल वॉल है. मतलब क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक और वॉल है, एक और कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड ए सेल वॉल. तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा एनिमल किंगडम है, इन केस ऑफ एनिमल किंगडम सेल वॉल इज एब्सेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो सेल वॉल इज देयर. You can say exterior to this plasma membrane. Animal cell lacks cell wall. मतलब एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती. अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स के केस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है एंड इट इज ऑल्सो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट. तो प्लांट्स के केस में सेल वॉल होती है. जैसे आपने अगर हिंदी मीडियम आपका रहा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो कोशिका भित्ति है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और पादप कोशिका का मतलब हुआ प्लांट सेल. तो प्लांट सेल में सेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है. तो दिस इज another point of difference between animal cell and plant cell as well as between these kingdom. Now there is another kingdom, that is kingdom fungi. In case of fungi, cell wall is present, cell wall present, but it is non cellulosic. मतलब क्या हुआ कि जो
हमारे पास फंजाई होती है, उसमें सेल वॉल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर है विच इज कॉल्ड ए सेल वॉल, पर वो सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती, वो काइटिन की बनी होती है, जिसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जो सेल वॉल है वो लगभग सभी किंगडम्स में प्रेजेंट है, केवल एनिमिलिया किंगडम को छोड़ करके। जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे उससे बिल्कुल एकदम उल्टा हो गया कि प्रोकैरियोटिक और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जब हम बात कर रहे थे तो प्रोकैरियोटिक सेल केवल मोनेरा में थी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केवल मोनेरा में एब्सेंट था। लेकिन यहाँ हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं, तो सेल वॉल जो है वो एनिमल किंगडम में बिल्कुल नहीं होती, बाकी किंगडम में हो सकती है, चाहे वो सेलुलोज की हो, चाहे नॉन सेलुलोज की हो, चाहे इन सम केसेस में ही प्रेजेंट हो। जैसे हम प्रोटिस्टा की बात करें तो सब में सेल वॉल नहीं होती प्रेजेंट, इन सम केसेस ओनली, इन सम एग्जांपल इट इज ऑब्जर्व्ड। और अगर हम बात करें मुनेरा की तो यहाँ पे उसको नॉन सेलुलर माना जाता है कि उसमें सेल्स नहीं होते, तो नॉन सेलुलर माना जाता है। और ये बनी होती है पॉलीसेकेराइड्स। ये जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, आप ये समझ लें कि पॉलीसेकेराइड एक तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और इनके अलावा पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड्स इनकी सेल वॉल में पाए जाते हैं। तो ये एक और हमारा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो क्लियर हो जाता है कि सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल एनिमिलिया किंगडम को छोड़ करके लगभग सभी में हो सकती है, चाहे वो कुछ ही मेंबर में हो। लेकिन इसमें जो मोनेरन है उनमें नॉन सेलुलर सेल वॉल होती है, पॉलीसेक्राइड्स और अमीनो एसिड्स की बनी होती है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की विच आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, वहां पे कुछ एक केसेस में सेल वॉल प्रेजेंट हो सकती है। पर अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में सेल वॉल होती है, बट इट इज नॉन सेलुलोजिक। इन केस ऑफ प्लांट्स दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, वाइल इन केस ऑफ एनिमल दिस सेल वॉल इज एब्सेंट। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अलावा एक ही पॉइंट हमारा डिस्कशन का बचता है, तो हम बात करेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। अब मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, कि बॉडी जो है वो किस चीज की बनी हुई है। क्या वो सेल्स की बनी है, टिश्यूज की बनी है, ऑर्गन की बनी है, ऑर्गन सिस्टम की बनी है। तो इस तरह से हम बात करेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, कि शारीरिक संगठन किस तरह का है, शारीरिक संरचना किस, क्या यह कोशिकीय है, ऊतकीय है, या अंगों की बनी हुई, या अंगतंत्र है इसमें, तो वो होती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इन केस ऑफ मुनेरा इट इज सेलुलर। यू नो दैट दिस मुनेरन्स दे आर सेल्स, मतलब देयर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर। इन केस ऑफ प्रोटिस्टा इट इज ऑल्सो सेलुलर। प्रोटिस्टा के केस में ये भी सेलुलर है। और अगर हम बात करें फंजाई के केस में तो दीज आर मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू आर प्रेजेंट। मतलब अब जो सेल्स है वो ग्रुप बना देते हैं, और आपको पता है कि सेल्स का ऐसा ग्रुप जो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है उसे टिश्यू कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो टिश्यू की अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो सबसे पहले हमारे पास मिलेगी फंजाई में, जबकि मुनेरन और प्रोटिस्टन के केस में लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, सेलुलर। और अगर हम इसके बाद प्लांट्स की बात करें तो वहां पे या तो टिश्यूज होंगे, जैसे आपको होता है जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, तो वो टिश्यूज हैं, या ऑर्गन भी हो सकते हैं, जैसे फ्लावर एक ऑर्गन है, तो इस तरह से या तो टिश्यूज होंगे या ऑर्गन होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की तो एनिमल्स में टिश्यू भी होते हैं, जैसे नर्वस टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास किडनी है, हार्ट है, लंग्स है। इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं। नो व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम, जैसे हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस तरह के सिस्टम हमारे पास एनिमल्स के केस में ऑब्जर्व किए जाएंगे। तो क्या था हमारे पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोट्स में सिंपल सेल्स की बॉडी बनी है, जो हमारे पास मोनेरन्स है उनमें केवल सेल्स की बॉडी बनी, और वो सेल्स भी प्रोकैरियोटिक्स है।
लेकिन अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, वहां भी सेलुलर लेवल है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, जबकि वहां पे जो सेल है वो यूकैरियोटिक है। जैसे हम बात करते हैं फंजाई की, तो द हेयर इट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर देयर एंड दे आर मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। And plants have either tissue level of organization or they have organelle level of organization, but animals on the other hand they have tissue, organ as well as organ system of level of organization। तो जो लास्ट हमारे पास पॉइंट बचता है दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब ये इनका आहार कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें इन केस ऑफ मुनेरा, और मुनेरा में आपको होता है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल नेक्ड पड़ा होता है, और वहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलर होती है, और उनका लेवल होता है सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ यहाँ पे जो न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक का मतलब है खुद बनाते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक खुद बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, या तो फोटोसिंथेटिक होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, या कीमोसिंथेटिक होगा। ये दोनों ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो दो ऑटोट्रॉफिक मतलब वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, या तो वो फोटोसिंथेसिस करके बना सकते हैं या वो कीमोसिंथेसिस से बनाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया ऑटोट्रॉफिक मोड। लेकिन अगर हम बात करें तो यहां पे हिट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। हिट्रोट्रॉफिक का मतलब है वो दूसरों से लें। अब दूसरों से कैसे लेंगे वो, हिट्रोट्रॉफिक में क्या हो सकता है, सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेंगे, सेप्रोफाइट्स जो डेड डिकेइंग डिकम्पोजिंग मटेरियल से लेते हैं, सड़ते हुए मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, या वो हो सकते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट का मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, उसके ऊपर या उसके अंदर रहते हैं और उससे फूड लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास दोनों तरह का मोड होता है मोनेरन्स में, या तो वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक में भी वो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं। अगर हम बात करें हिट्रोट्रॉफिक की, मतलब दूसरों से अगर वो फूड लेते हैं तो या तो डेड डिकेइंग से लेते हैं, सड़ती हुई चीज़ों से लेंगे, या दूसरों की बॉडी से लेंगे, तो या तो सेप्रोफाइट्स होंगे या पैरासाइट्स होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी, दैट इज यू कैन से प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के केस में ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद अपना भोजन सिंथेसाइज कर सकते हैं, और हिट्रोट्रॉफिक होता है। हिट्रोट्रॉफिक में सेम सिस्टम रहेगा कि या तो सेप्रोफाइट्स होंगे या पैरासाइट्स होंगे। तो ये हमारे पास आ गया किंगडम प्रोटिस्टा। जब हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की, तो दीज आर हिट्रोट्रॉप्स। इनमें कोई ऑटोट्रॉप्स नहीं पाया जाता। इनको वैसे बोला भी जाता है ए क्लोरोफिलस हिट्रोट्रॉप्स। ए क्लोरोफिलस का मतलब होता है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तो इसलिए इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हिट्रोट्रॉफिक होता है, मतलब दूसरों से लेता है, चाहे वो डेड डिकेइंग से ले, जैसे मशरूम आपने देखी है कि उसको कंपोस्ट पे उगाया जाता है, गोबर पे उगाया जाता है, तो वो डेड डिकेइंग से लेती है। और पैरासाइट तो बहुत सारी हमारी, जैसे एल्ब्यूगो कैंडिडा है, पक्सिनिया है, बहुत सारी हमारी ऐसी फंजाई है जो दूसरों के ऊपर रहती है। अस्टिलेगो ट्रिटिसाई है, अल्टरनेरिया सोलेनाई है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी फंगस है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहती है, बट दे आर नॉट ऑटोट्रॉपिक, दे हैव हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ प्लांट्स, यू नो plants are autotrophic and you can say these are photosynthetic। फोटो ऑटोट्रॉप्स भी इनको कहा जाता है। जैसे हम बैक्टीरिया की बात करते हैं या हम बात करते हैं मुरेरन की, तो वहां पे कीमोसिंथेसिस भी होती है, पर यहाँ पे कीमोसिंथेसिस नहीं होती। यहाँ पे कौन सी होती है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनमें एक ग्रीन कलर्ड का पिगमेंट होता है, हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और अगर हम बात करें तो ये एनिमल्स कैसे होते हैं, हीट्रोट्रॉफिक, ये दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। या तो ये होलोजोइक होंगे, मुंह के द्वारा खाना अंदर ले जाएंगे,
जो एनिमल नेचर जिसको कहा जाता है होलोजोइक होंगे या सेप्रोफाइट्स होंगे, तो इस सेप्रोजोइक भी हम इनको कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर आप सिंपल सा देखें तो जो मोनेरन्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक दोनों होते हैं, और ऑटोट्रॉपिक में भी वो या तो फोटोसिंथेटिक होते हैं या कीमोसिंथेटिक होते हैं। हिट्रोट्रॉपिक में वो पैरासाइट और सेप्रोफाइट्स होते हैं। अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की तो वहाँ पे भी ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जबकि फंजाई के केस में केवल हिट्रोट्रॉपिक है और प्लांटी के केस में केवल ऑटोट्रॉपिक है, और एनिमल्स के केस में केवल हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इस तरह से आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया उसमें हमने केवल 5 पॉइंट लिए: सेल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और न्यूट्रिशन। इसके बेसिस पे हमने पहले एक किंगडम को अलग कर दिया, दैट इज मोनेरा। उसमें केवल प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, बाकी सब में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन के बेसिस पे भी केवल मोनेरा अलग हुआ क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल की अगर हमने बात की तो सेल वॉल में एक किंगडम एनिमिलिया होता है जहां पे सेल वॉल एब्सेंट होती है, और दूसरा प्रोटिस्टा होती है जहां पे केवल कुछ केसेस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बाकी केसेस में चाहे मोनेरन में आप देखेंगे वहां पे नॉन सेलुलर सेल वॉल होती है और पॉलीसेक्राइड्स और अमीनो एसिड्स की बनी होती है। लेकिन फंजाई के केस में सेल वॉल तो होती है बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज, व्हाइल इन केस ऑफ प्लांट्स इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हमने बात की तो वहां पे दो किंगडम अलग हो गए, मोनेरा और प्रोटिस्टा, बोथ ऑफ देम हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फंजाई में होता है जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं और लूज टिश्यू में पाए जाते हैं, और टिश्यू और ऑर्गन लेवल जो है वो प्लांट्स में होता है। लेकिन जब हम टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो हम एनिमल्स की बात करते हैं। और लास्ट हमारे पास जो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर आप देखें तो इसमें दो जो किंगडम ऐसे हैं जिनमें मिक्स्ड होता है, मतलब ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हिट्रोट्रॉपिक भी होता है। वो कौन से होते हैं? एक मोनेरा और एक प्रोटिस्टा। और एक किंगडम ऐसा है जिसमें ऑटोट्रॉपिक होता है, वो होता है किंगडम प्लांटी। और फंजाई और एनिमिलिया के केस में हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो इस तरह से आज हमने जो 5 किंगडम्स पढ़े, उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक किंगडम को अलग अलग स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।